very important question. Theoretically, what are the factors affecting elasticity of demand? Factors affecting demand बिल्कुल अलग क्वेश्चन है. फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है? इलास्टिसिटी हाई होगी, लो होगी, क्या होगी? Factors affecting demand: price of the commodity, price of related goods, income of the consumer, taste and preferences, future expectations, market demand, size and composition of the population, weather conditions, distribution of income. वो सब थे factors affecting demand. हम क्या कर रहे हैं? Factors affecting elasticity of demand. Theoretically very important question. किन factors पे depend करती है elasticity of a commodity, elasticity of demand? A change in price does not always lead to the same proportion change in demand. For example, a small change in price of AC may affect its demand to a considerable extent, whereas a large change in price of salt may not affect its demand. Correct? जरूरी नहीं है कि हर बारी change in price will lead to a same proportion of change in demand of the commodity. कह रहे एयर कंडीशनर है, प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी गिरेगी, बट जरूरी नहीं है कि उसकी जितनी क्वांटिटी गिरेगी सॉल्ट की भी उतनी गिरेगी, क्योंकि दोनों का नेचर अलग है. सॉल्ट अगर महंगा हो गया तो क्या कम खाओगे? कह रहे पहली बेसिक रिक्वायरमेंट है, हमें तो पता ही नहीं सॉल्ट होता कितने का है, कभी ध्यान ही नहीं दिया. यस और नो? क्योंकि जितना लेना है उतना लेना ही है. बट एयर कंडीशनर क्या वो नेसेसिटी है? नहीं. ज्यादा महंगे हो गए तो नहीं यूज करेंगे, बिजली ज्यादा महंगी हो गई तो एयर कंडीशनर कम यूज करेंगे. सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गुड्स. तो वो कह रहे फिर ऐसे किस किस चीज पे डिपेंड करती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज नेचर ऑफ द कमोडिटी, कि वो नेचर नेसेसिटी है, क्या वो नेचर कंफर्ट है, क्या वो नेचर लग्जरी है. Elasticity of demand of a commodity is influenced by its nature. When you explain nature तो तीन कैटेगरीज में डिवाइड करके बात करेंगे. A commodity of for a person may be a necessity or a comfort or a luxury. When a commodity is a necessity, कि वो चाहिए ही चाहिए, तो क्या प्राइस ज्यादा हो गए तो डिमांड कम होगी? ज्यादा नहीं होगी. When a commodity is a necessity like food grains, vegetables, medicines, its demand is generally inelastic. When you say inelastic, तो elasticity क्या होती है? Elasticity is less than 1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6. नेगेटिव तो होगी बट लेस देन 1 उसको बोलते हैं inelastic. As it is required for human survival, कि percentage change in price is more than the percentage change in quantity. Numerator would be less than the denominator, तो result would be less than 1. प्राइस बढ़ा 10% से, क्वांटिटी गिरी बट सिर्फ 5% से, क्योंकि वो नेसेसिटी था. नेसेसिटी के एग्जांपल्स पता होने चाहिए. फूड ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, मेडिसिन्स. Its demand does not fluctuate much with the change in price. कोई भी डाउट? कोई भी डाउट? नेसेसिटी. Comforts like fan, refrigerator, its demand is generally elastic, as a consumer can postpone its consumption. Relatively elastic as compared to the necessities. Luxury, highly elastic. It is generally luxuries like air conditioner, DVD player. Its demand is generally more elastic as compared to demand for comforts. The term luxury is relative. अब क्या होता है कि अब luxury बोलना तो बड़ी एक relative term है. एयर कंडीशनर तो नेसेसिटी में भी आता है, काफी जगहों पे कह रहे भाई नेसेसिटी है, कंफर्ट भी नहीं, लग्जरी भी नहीं, ये एक नेसेसिटी है. कुछ लोगों के लिए वो कंफर्ट है, कुछ लोगों के लिए वो लग्जरी है. अब ये नेचर डिटरमिन करना, मतलब खाना तो सबके लिए नेसेसिटी है, बट खाने में भी तो कितने वेरिएंट्स होते हैं. ऑर्गेनिक फूड नेसेसिटी तो नहीं हो सकता, यस और नो, बट किसी के लिए नेसेसिटी है. वो कैसी बातें कर रहे हो, ये खाऊंगा तो मर जाऊंगा, खाऊंगा तो मैं ऑर्गेनिक फूड ही, तो मेरे लिए तो नेसेसिटी है. तो वो कह रहे कुछ चीजें रिलेटिव होती, कुछ चीजें रिलेटिव होती है. भावनाओं को समझो वो कहना क्या चाहते हैं. नेसेसिटी, इलास्टिसिटी इज लो. इनइलास्टिक बोल, इनइलास्टिक मतलब जीरो नहीं,
less than 1. Comforts relatively elastic, 1, 1.5, 2, etc. Luxuries highly elastic, more than 2, 3, 4. इलास्टिसिटी की वैल्यू की बात हो रही है. ओके, कोई डाउट? तो फर्स्ट फैक्टर नेचर ऑफ द कमोडिटी. सेकेंड फैक्टर अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स. अब ध्यान से देखना, किसी चीज का प्राइस बढ़ा, हमारी डिमांड कम हो गई. अरे डिमांड तो तब कम होगी ना जब आपके पास ऑप्शन है कुछ और लेने का. तो अगर आपके पास सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल हैं उस चीज के, तो इलास्टिसिटी हाई होगी कि उसने थोड़ा सा भी प्राइस बढ़ाया ना, मैं उससे सामान लेना बंद कर दूंगा क्योंकि मेरे पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं. तो सब्सटीट्यूट्स अगर हैं तो इलास्टिसिटी हाई होगी. किसी चीज के अगर सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल नहीं है तो इलास्टिसिटी लो होगी. कोई डाउट? क्लियर? इजी बट इंपॉर्टेंट. Demand for a commodity with large number of substitutes will be more elastic. The reason is that even a small rise in price will induce the buyers to go for its substitutes. Price बढ़ा तो हम substitute ले लेंगे, अगर substitute है तो ना. For example, rise in the price of Pepsi encourages them to buy Coke. Thus, availability of close substitutes makes the demand sensitive to the change in price. On the other hand, commodities with few or no substitutes like wheat, salt, they have less elasticity of demand. तो substitutes available हैं तो elasticity high होगी, substitutes available नहीं है या कम है तो low होगी. कोई डाउट? मतलब बता रहा हूँ बट ये आपको अपने आप ही समराइज करना, हर पॉइंट को ना एक लाइन में समराइज करना आना चाहिए. Availability of substitutes. Many substitutes available. तो क्या होगा? Elasticity would be high. Low or no substitutes available, तो elasticity would be low. तो ऐसे आपको ना हर एक का एक समरी बनानी, एक लाइनर आ जाना चाहिए क्योंकि कुछ भी आ सकता है. तो सब कुछ थोड़ी ना पूरी कहानी याद समझनी है, इंटरप्रेट करनी आनी चाहिए. इनकम लेवल, अगर आपके इनकम बहुत हाई है तो क्या आपको फर्क पड़ता है कि चीजों के प्राइसेस बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं? कह रहे हम तो प्राइस देखते ही नहीं, जो चीज पसंद आ गई बस ले लेते हैं. तो इनकम हाई है तब ऐसी हरकतें हो सकती हैं. शॉपिंग करने गए, जो पसंद आया आंख बंद करके प्लीज कार्ड से पेमेंट की जाए. मतलब इनकम लेवल अगर हाई है तो आपको फर्क ही नहीं पड़ता कि प्राइसेस बढ़ रहे हैं, कितने बढ़ रहे हैं, क्या है. लेकिन अगर इनकम लेवल लो है तो आप हर चीज को ध्यान से रैशनल अप्रोच के साथ सोच समझ के खरीदेंगे. तो इनकम लेवल हाई तो इलास्टिसिटी लो, इनकम लेवल लो तो इलास्टिसिटी हाई. समरी लिखने की जरूरत है, समझ आ गई ना? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एनी कमोडिटी जनरली लेस फॉर हायर इनकम. सर लेस क्यों? इलास्टिसिटी लेस मतलब रिस्पॉन्सिवनेस लो है, उनको फर्क नहीं पड़ रहा, उनकी डिमांड ज्यादा चेंज नहीं हो रही प्राइसेस बढ़ने की वजह से. इनकम लेवल हाई है in comparison to people with low incomes. It happens because rich people are not influenced much by changes in the price of goods, but poor people are highly affected by increase or decrease in the price of goods. As a result, demand for lower income group is highly elastic. कोई डाउट? लेवल ऑफ प्राइस, कोई चीज सस्ती है जैसे कि ये 5 रुपए वाली आइसक्रीम, 10 रुपए वाली आइसक्रीम, कोई चीज बहुत सस्ती है तो अगर वो 10 से 11 रुपए हो भी गई, 12 रुपए हो भी गई, 20% बढ़ गए, 10 से 12 20% राइज है, क्या डिमांड ज्यादा अफेक्ट होगी? नहीं होगी. कोई चीज सस्ती है तो वो आपके टोटल एक्सपेंडिचर का बड़ा छोटा पोर्शन होता है, इनसिग्निफिकेंट पोर्शन होता है, तो आपको फर्क नहीं पड़ता कि क्या हुआ. लेकिन अगर कोई चीज आपकी इनकम का मतलब लेवल ऑफ प्राइस की बहुत महंगी चीज है, जैसे कि गाड़ी, एयर कंडीशनर,
तो महंगी चीजें हैं, तो इनका जब 20% बढ़ेगा तो वो काफी होगा। तो अगर किसी चीज का प्राइस लेवल लो है तो उसकी इलास्टिसिटी लो रहती है। पेंसिल हो गई, इरेजर्स हो गए, बेसिक स्टेशनरी आइटम्स, तो इलास्टिसिटी लो रहती है। कह रहा फर्क नहीं पड़ता, मतलब हमें तो याद ही नहीं कि पेंसिल कितने की, हम तो बस पेंसिल दे दो, यही होगा ना। आप कोई पेंसिल कम थोड़ी ना कर दोगे ज्यादा अगर, लेकिन हाँ 50 रुपए की पेंसिल होगी तो डेफिनेटली इम्पैक्ट आएगा। बट कह रहे क्योंकि प्राइस लेवल इतना लो है तो इसलिए फर्क नहीं पड़ता। ऑन दी अदर हैंड प्राइस लेवल अगर हाई है तो इलास्टिसिटी हाई होगी। समझना है, बट लिखना भी आना चाहिए समझने के बाद। कुछ लोग इतना अच्छा समझते हैं कि वो पढ़ते ही नहीं, कह रहे ना हम बना लेंगे आंसर, टेंशन ना लो आप। पता नहीं फिर टीचर को समझ से नहीं आते तुम्हारे आंसर। तो प्लीज लैंग्वेज भी यूज करनी है ढंग की। लेवल ऑफ प्राइस ऑल्सो अफेक्ट्स द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कॉस्टली गुड्स लाइक लैपटॉप, AC, they have a highly elastic demand as their demand is very sensitive to the changes in their prices. However, inexpensive goods like needle, matchbox, inelastic, as the prices of such goods do not change their demand by a insignificant amount. Prices की बात हुई, price low, elasticity low, prices high, elasticity high. कोई doubt? पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन, क्या इस खर्चे को आप पोस्टपोन कर सकते हैं 2-3 महीने तक? हाँ, अगर आपके पास है इतना टाइम तो फिर जैसे आप पोस्टपोन कर सकते हैं तो फिर आपके पास ऑप्शंस बढ़ जाएंगे। मेरे को कल जाना है कहीं और कल कल तक ये सामान चाहिए, तो क्या मैं कंजम्पशन पोस्टपोन कर सकता हूँ? मैं कल जा रहा हूँ दुबई या US या किसी भी कंट्री में ट्रैवल करने और मुझे कोई बैग चाहिए, तो क्या मैं पोस्टपोन कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। मुझे 3 महीने बाद जाना है दुबई, तो क्या मैं, मुझे कल कल में ये सामान खरीदना है? No. If I have 3 months, इसका मतलब I have sufficient time period to explore options. तो explore option मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट बढ़ गया। आपके पास टाइम नहीं है पोस्टपोनमेंट का तो अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स इज वेरी लो। क्लियर? तो इलास्टिसिटी वुड बी लो। Commodities like biscuits, soft drinks, etc., whose demand is not urgent. बिस्किट नहीं मिलेगा तो क्या हो गया, रोटी तो चाहिए। They have highly elastic demand as their consumption can be postponed in case of an increase in price. However, commodities with urgent demand like life-saving drugs, medicines कहते हैं life-saving drugs, have inelastic demand. Immediate requirement है, कह रहा चोट अभी लगी है, बीमार अभी हूँ, कह रहा अभी रुक जा, अभी बड़ी शॉर्टेज चल रही है, 1 महीने बाद इसके प्राइसेस थोड़े कम हो जाएंगे, तब खा लियो। क्या पॉसिबल है पोस्टपोनमेंट? नहीं। तो पोस्टपोनमेंट अगर पॉसिबल है पोस्टपोन करना तो इलास्टिसिटी लो होगी, अगर पोस्टपोन करना पॉसिबल नहीं है तो इलास्टिसिटी हाई होगी। समझ आ गई बात? नंबर ऑफ यूजर्स, जो आप चीज यूज कर रहे हो उसके नंबर ऑफ यूजर्स कितने हैं। कह रहा है जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, बताया था इलेक्ट्रिसिटी के मल्टीपल यूजेस होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी डिस्प्ले के लिए यूज हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी लाइट के लिए यूज हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी कूलिंग के लिए यूज हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी हीटिंग के लिए यूज होती है। मल्टीपल यूजेस हैं। तो जब वो चीज सस्ती होगी तो उसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जब वो चीज महंगी होगी तो उसकी डिमांड बहुत ज्यादा गिर भी सकती है। बंद कर देंगे AC? यस और नो? हीटर नहीं चलाएंगे, गैस पे गर्म कर लेंगे पानी। सर गैस देखा है कितनी महंगी है। अब वो तो कंपैरिजन की बात है ना कि किस चीज में कितना आपको कॉस्टली पड़ रहा है। पॉइंट इज कि अगर नंबर ऑफ यूजर्स हाई हैं तो इलास्टिसिटी हाई होती है। जैसे मिल्क है, मिल्क बेसिक ड्रिंकिंग के लिए यूज हो सकता है, कर्ड, पनीर, घी, आइसक्रीम, मिठाई, मल्टीपल यूजेस हैं। अगर मल्टीपल यूजेस हैं तो इलास्टिसिटी हाई होगी, अगर मल्टीपल यूजेस नहीं है तो इलास्टिसिटी लो होगी। कुछ चीज का सिंगल यूज है, स्टेपलर का सिंगल यूज है, ये जितना मर्जी सस्ता हो जाए, ज्यादा ले लूंगा क्या कि नहीं, अब इसी से कर लूंगा बाकी सब कुछ भी, तो मल्टीपल यूजेस नहीं है। If the commodity under consideration has several users, then its demand would be elastic. Demand would be elastic मतलब elasticity would be high. When the price of such commodity increases, then it is generally put to only most urgent users. As a result, तो ये अगर उसका प्राइस बढ़ गया तो भाई सबसे अर्जेंट कौन सा है? मल्टीपल यूजेस है ना, सबसे इंपॉर्टेंट बताओ कौन सा है, तो सिर्फ वही यूज होगा। तो हाईली इलास्टिक हो गई डिमांड, इलास्टिक मतलब मोर देन वन। When the price falls, then it is used for satisfying even less urgent needs. Demand rises. For example, electricity और मिल्क दो एग्जांपल्स हैं नंबर ऑफ यूजर्स जिनके हाई है।
On the other hand, a commodity with no or few alternative uses has less elastic demand. Clear? शेयर एंड टोटल एक्सपेंडिचर, आप जिस चीज पे अपना खर्चा कर रहे हो, टोटल एक्सपेंडिचर है आपका फॉर एग्जांपल महीने का 50,000, आप जिस कमोडिटी की बात हो रही है उस पर 500 रुपए खर्च करते हो महीने में, तो क्या शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर हाई है या लो है? वेरी लो. तो इफ शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर ऑन दैट कमोडिटी इज लो, तो आपकी इलास्टिसिटी लो होगी, आपको फर्क नहीं पड़ता 500 के अगर 700 भी हो जाए, 40% बढ़ गया उस पर खर्चा. 500 से 700 होना मतलब 40% राइज, बहुत बड़ी बात होती है, बट आपको फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि आपका आपका शेयर ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर बहुत लो था. बट लेकिन अगर शेयर ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर हाई है कि आप उस चीज पे महीने के 20,000 उसी चीज पे खर्च करते हो, तो फिर इलास्टिसिटी हाई होगी. यस और नो? या अपनी इनकम का सिग्निफिकेंट पोर्शन उस चीज पे जा रहा है तो इलास्टिसिटी हाई होगी. लेस सिग्निफिकेंट पोर्शन, इनसिग्निफिकेंट पोर्शन जा रहा है तो इलास्टिसिटी लो होगी. सिमिलर टू लेवल ऑफ प्राइस ऑफ द कमोडिटी, सिमिलर टू, बट एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर की बात करेंगे, प्राइस में प्राइस की. Proportion of consumers' income that is spent on a particular commodity also influences the elasticity of demand for it. Greater the proportion of income spent on the commodity, more would be the elasticity. Demand for goods like salt, needles, soap, they are inelastic as consumers spend a small proportion of their income on such goods. When prices of such goods change, consumers continue to purchase almost same quantity of these goods. आप अपनी इनकम का छोटा सा फ्रैक्शन अगर किसी चीज पे स्पेंड करते हैं तो आपकी इलास्टिसिटी लो होती है, उसके प्राइसेस बढ़ भी गए तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. हाई प्रपोर्शन स्पेंड करते हैं, गाड़ी हो गई, एयर कंडीशनर हो गया, तो इलास्टिसिटी हाई होगी. कोई डाउट? शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर. टाइम पीरियड, तो दिस इज रिलेटेड टू पोस्टपोनमेंट, दिस इज रिलेटेड टू पोस्टपोनमेंट. तो टाइम पीरियड वही है कि आपको जो डिमांड फुलफिल करनी है, अपनी सेटिस्फाई करनी है, उसको सेटिस्फाई करने के लिए आपके पास कितना टाइम है. टाइम है ज्यादा तो इलास्टिसिटी हाई होगी क्योंकि आप अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं. टाइम नहीं है ज्यादा, पोस्टपोनमेंट नहीं हो सकती, तो फिर नहीं कर सकते. सिमिलर है, बट पोस्टपोनमेंट में वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा था कि खाने पीने की बात है कि अभी इमीडिएटली नहीं खाया तो खत्म जिंदगी, तो पोस्टपोनमेंट कि दवाई अभी चाहिए, बिस्किट चॉकलेट अभी नहीं चाहिए. ये टाइम पीरियड उसी से रिलेटेड है बट डिफरेंट वे में बात कर रहे हैं, है पोस्टपोनमेंट से रिलेटेड. जबरदस्ती उन्होंने पॉइंट बढ़ाने के लिए बढ़ा रखे हैं, बट स्टिल आपको लिखना है तो फिर उस वे में भी लिखना पड़ेगा ना. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ऑलवेज रिलेटेड टू द पीरियड ऑफ टाइम. इट कैन बी अ डे, वीक, मंथ, अ ईयर. Elasticity of demand varies directly with the time period. Demand is generally inelastic in the short period. मैं बता रहा हूँ ना, मुझे 2 दिन का टाइम है भाई साहब, ये चाहिए, तो इलास्टिसिटी लो है. It is inelastic in a short period of time. It happens because consumers find it difficult to change their habits. अब मैं कहाँ से लाऊं कुछ और, मुझे तो यही चाहिए और मैं नहीं चेंज कर रहा अपनी हैबिट, मेरे को तो इसी की आदत है, यही खाऊंगा मैं. लेकिन अगर वो चीज़ महंगी हो गई और चलो मुझे 2 3 4 महीने 6 महीने, तो धीरे धीरे सह लेंगे, थोड़ा बदल लेंगे अपनी हैबिट्स. तो चेंज करने के लिए भी तो टाइम चाहिए. टाइम पीरियड है तो इलास्टिसिटी हाई है, टाइम पीरियड नहीं है तो इलास्टिसिटी लो है. डिमांड इज मोर इलास्टिक इन द लॉन्ग रन, लेस इलास्टिक इन द शॉर्ट रन. कोई डाउट? हैबिट्स, किसी चीज जो हैबिचुअल गुड्स हैं आपके, किसी चीज की आपको आदत पड़ जाए, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक हो, चाहे वो हार्ड ड्रिंक हो, चाहे वो सिगरेट हो, हैबिचुअल गुड्स होते हैं ना कुछ, तो फिर ओरियो भी हो सकते हैं. ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि गंदी चीजें ही होती है, किसी भी चीज की हैबिट पड़ सकती है. चॉकलेट की हो सकती है, किसी भी चीज की हैबिट हो सकती है. चिप्स की हो जाती है किसी को कि बातें करते करते वो उधर निपटा देते हैं पैकेट. जिस चीज की हैबिट है उसकी इलास्टिसिटी लो होती है, मतलब आप वो कंज्यूम करोगे ही करोगे. जिस चीज की हैबिट नहीं है उसकी इलास्टिसिटी हाई होती है. नहीं मिला वो, ओ नो, किसी और दुकान पे चलना पड़ेगा, मुझे चाहिए वो, तो मतलब हैबिट है, आप चेंज नहीं कर पाओगे उस चीज को, वो डिमांड फुलफिल करके ही मानोगे, तो इलास्टिसिटी लो है. आपको फर्क नहीं पड़ रहा कि वो प्राइसेस उसके कितने हो गए हैं.
लेकिन अगर हैबिचुअल गुड्स नहीं है तो इलास्टिसिटी लो है। कह रहे नहीं मिला, नहीं मिला, क्या दिक्कत है, कोई बात नहीं, चॉकलेट नहीं मिली, चलो आइसक्रीम खा लेते हैं, क्या दिक्कत है, आइसक्रीम भी नहीं मिली, चलो रसमलाई खा लेते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी होना जरूरी है लाइफ, खुश रहोगे। Commodities which have become habitual necessities for the consumers have less elastic demand. It happens because such a commodity becomes a necessity for the consumer and he continues to purchase it even if the prices rise. Alcohol, tobacco, cigarettes are some examples of habit forming commodities. मैं चॉकलेट आपका दिल रखने के लिए बोल रहा था, बट वो भी एक हैबिट है। कुछ लोगों को चॉकलेट की आदत होती है जो अल्कोहल, टोबैको और सिगरेट्स नहीं लेते। So finally, it can be concluded that elasticity of demand for a commodity is affected by a number of factors. However, it is difficult to say which particular factor or combination of factors determines the elasticity. It depends on multiple factors. बहुत सारे reasons हैं, pinpoint करके नहीं बता, नहीं इसकी वजह से इसकी elasticity high है, कह रहे multiple factors है, कोई doubt? Very important theoretical question, but please समझ के करोगे तो बहुत इजी है, बिना समझे करोगे तो फिर तो ऐसे लोगे इतने सारे पॉइंट्स हैं, ओ माय गॉड। प्लीज अंडरस्टैंड, बट यस यूज की वर्ड्स, प्रॉपर लैंग्वेज व्हाइल गिविंग द आंसर।